Okay. Once again, good morning to all of you. Today, we'll discuss about the megasporangium. Megasporangium is also known as ovule. Megasporangium is also known as ovule. I have made one diagram of inotropous ovule, structure of inotropous ovule. After that, you see, I have made the embryo sac also. Embryo sac, you see, 2, 4, 8 nucleus stage of embryo sac. 2 cell embryo sac, 2 stage, 4 cell stage, and 8 cell embryo sac. After this is the, you see, synergy, centipodal, polar nuclei, antipodal cells, egg cells. After that, I have made mature embryo sac. Mature embryo sac. One by one, we will discuss how mature embryo sac formed and what is the structure of ovules. Then let's continue structure of ovules. Dear, as you know that this megasporangium is also known as ovule, and ovule is a small structures. Ovule is a small structures, and the upper portions, or you can say stalk of ovules attached to the placenta. Stalk of ovules attached to the placenta, and in case of the ovule, stalk is known as funicle. You see, this is the funicle. This is overall structure of ovules, and this is the funicle. This funicle acts as a stalk, and this stalk attached to the placenta. I have told you, I have made the structure of ovina, like you see, this is the diagram structure of ovary, and here this one is the loculus, and here ovules. It means this ovules attached to the wall of ovary, or you can say the placenta, through the funicles, and this funicle in case of ovule act as a stalk. It means you can say this funicle help to attachment of ovule to placenta. This is the work of funicle. Below the funicle, you see this region, this region, this one, this region represent to the hilum regions. Hilum regions. But what is the hilum regions? You see this hilum region present below the funicles, and this is the whole body of ovules. Listen to me very carefully. This is the whole body of ovules. This one represents the whole body of ovules, and this upper portion funicles means, and this is the place is known as hilum. But how you can define the hilum? Hilum is the place where funicle and body of ovules fuse to each others. That is known as hilum. कहने का मतलब ये है भैया कि जहां पे ओव्यूल्स और फ्यूनिकल जो है एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं हाइलम रीजन्स. जस्ट यहाँ पे तो होता है पूरी नीचे की ओव्यूल्स की बॉडी है, और ये जो होता है फ्यूनिकल है, यहीं पे जो होता है ताकि फ्यूज करके इसी को बोलेंगे हाइलम रीजन्स, है ना. दिस इज द हाइलम. आफ्टर दैट यू सी this outer covering, this is the one outer covering, this is the second outer covering of the ovules. It means this ovules enclosed in two membranous structures, or you can say the two envelopes, and these two envelopes act as a integuments. This is the outer integument, this is the inner integuments. कहने का मतलब ये है भैया कि ओव्यूल्स की पूरी बॉडी जो होता है, दो जो होता है मेम्ब्रेन से घिरी रहती है, और दोनों मेम्ब्रेन को बोला जाता है क्या? वन इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस रिप्रेजेंट टू द आउटर मेम्ब्रेन, एंड द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. आई होप इट इज क्लियर. फर्स्ट दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, and below the outer this is the inner membrane. It means
ovules enclosed inside the membranous structure that is known as integuments, and ovules surrounded by two integuments. That's why it is mentioned outer integuments and inner integuments. कहने का मतलब अगर पूछा जाए ओव्यूल्स का क्या जो होता फंक्शन है, ये सॉरी इंटेगुमेंट्स का क्या फंक्शन है, तो इंटेगुमेंट्स जो होता है ओव्यूल्स को पूरा जो होता है इनक्लोज्ड के रहता है, ओव्यूल को पूरा जो होता है कवर के रहता है और इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ इंटेगुमेंट्स। अब देखें, लेकिन यहां से देखें कितने क्वेश्चंस जो होता है मेडिकल नीड के लिए क्रिएट होंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से आपको अगर आप मुझे सुनेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि हर कंसेप्ट आपके दिमाग में जो होगा ध्यान से अगर सुनेंगे तो, और इतने इसी डायग्राम से कितने क्वेश्चंस आपके एकेडमिक में, कितने क्वेश्चंस आपके नीट में बनेंगे, अभी मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। लेकिन ध्यान से सुने कि मैंने कहां से जो होता है शुरू किया और कहां पे जो होता है अंत करूंगा, कहां से स्टार्ट, किसको जो होता है ओव्यूल से स्टार्ट किया और ले जाके फिनिश कर दूंगा किस पे, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल पे। तो ये जो होता है आपका ये दोनों फिनिश हो जाएगा, ओव्यूल्स है एम्ब्रियोस है। लेकिन ध्यान से सुनेंगे तब। देखिए हमने बताया दिस इज द आउटर इंटेगुमेंट, दिस इज द इनर इंटेगुमेंट। अब देखिए एंड दिस अपर पोर्शन ऑफ द ओव्यूल्स रिप्रेजेंट द माइक्रोपाइलर कोर या माइक्रोपाइलर एंड। ओव्यूल्स का ऊपर का पोर्शन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है माइक्रोपाइलर पोल या उसी कह सकते हैं माइक्रोपाइलर एंड, दोनों सही है। अगर ऊपर का जो होता है ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया, नीचे का बेसल पोर्शन अगर आप देखें, बेसल पोर्शन ऑफ ओव्यूल्स इज नोन एज चाइल्डल पोल। यहाँ लिखा गया है बेसल पोर्शन ऑफ द ओव्यूल्स इज नोन एज चाइल्डल पोल, आईसी चाइल्डल एंड, दोनों सही है। इसका मतलब हम क्लियर कर ले जो था माइक्रोपाइलर पोल को और चाइल्डल पोल को। उसके बाद देखें ध्यान से, थोड़ा सा अपने आप को म्यूट कर ले, कुछ लोगों की आवाज आ रही है भाई तो उसको थोड़ा सा म्यूट कर ले। इधर देखिए, अब देखें इसके बाद हम बात करें माइक्रोपाइलर पोल की बात देखें। ये यहाँ पे कितना ये गैप दिख रहा है, ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट गैप है। इधर देखें यही प्लेस है जहां पे इंटेगुमेंट ओव्यूल को कवर नहीं करता। ध्यान से सुने, नेट वाले ध्यान से सुने। पूछा जाएगा द प्लेस वेयर इंटेगुमेंट नेवर कवर टू ओव्यूल्स, वह स्थान जहां पे ओव्यूल, जहां पे जो होता है इंटेगुमेंट जो होता है कभी भी ओव्यूल को कवर नहीं करता, दैट प्लेस इज नोन एज माइक्रोपाइल। इस प्लेस को माइक्रोपाइल कहते हैं। यहाँ पे इंटेगुमेंट जो होता है ओव्यूल को कवर नहीं करता। ध्यान से देखें, यहाँ पे ये देखें, ये पूरा जो होता है गैप है, यहाँ से आपका इंटेगुमेंट शुरू हुआ, ये देखें ये आपका इंटेगुमेंट है। इसका मतलब ये है इंटेगुमेंट पूरे जो होता है ओव्यूल को कवर कर लिया, लेकिन ये प्लेस बिल्कुल एम्प्टी है। इसका मतलब यहाँ पे जो होता है इंटेगुमेंट कवर नहीं करता, और इसी रीजन को जहां पे जो होता है इंटेगुमेंट कवर नहीं करता ओव्यूल को उसी कहते हैं माइक्रोपाइल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि द प्लेस इन ओव्यूल्स वेयर इंटेगुमेंट्स एब्सेंट, दैट प्लेस इज नोन एज माइक्रोपाइल। आगे चलिए, आप देखिए माइक्रोपाइल की डिटेल आगे हम बताएंगे, क्योंकि वहां से पॉलन ग्रेन एंट्री करता है, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन का प्रोसेस होता है। लेटर we'll discuss about the double fertilization and triple fusion. आगे देखिए, this chemical phylum, this micropyle, outer integument, inner integument, chelidal, and this is the micropyle. यहाँ पे देखें this portion, this is known as nucleus. ध्यान दें, below the integument mass of cells is known as nucleus. जितना मैं बता रहा हूँ सब एनसीईआरटी की लाइन है। मास ऑफ सेल्स इज नोन एज न्यूक्लियस। यहाँ पे देखें ये पोर्शन आपका ओव्यूल्स का ये पोर्शन जो होता है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, न्यूक्लियस को।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है न्यूक्लियस से क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन से बनेगा कि रिजर्व फूड मटेरियल्स प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ ओव्यूल्स। आपके एनसीईआरटी में जबकि मेंशन है, क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से नेट वालों के लिए कि रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल्स। ऑप्शन में आप करेगा फिनिकल, हाइलम, माइक्रोपाइलर, इंटेगमेंट, चेलजलपोर, माइक्रोपाइलरिन, दैट इज द न्यूक्लियस। कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस मास ऑफ सेल्स है जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है स्टोर रहता है। हम आगे देखें इसी न्यूक्लियस में, this nucleus contain embryo cell, okay, this is the embryo cell, this is the embryo cell. It means you can say embryo sac present in the nucleus regions, in a nucleus regions। आप देखें ये embryo sac है और इसी embryo sac में जो होता है क्या प्रेजेंट है, सॉरी ये न्यूक्लियस रीजन है और इसी न्यूक्लियस रीजन में प्रेजेंट है क्या, embryo sac। और इसी embryo sac को बोला जाता है क्या, इसी embryo sac को बोला जाता है भैया, बताएं अगर किसी को पता हो, दैट इज नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो साइक इज आल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखिए अगर ये एम्ब्रियो साइक, क्वेश्चन आपका ये होगा कि सर एम्ब्रियो साइक तो न्यूक्लियस में बन गया, इट मींस फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो साइक टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, बट हाउ फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो साइक टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो होता है एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कौन सी सेल्स थी जो होता है उसको फॉर्मेशन की एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट्स को, उसको हम डिस्कस करेंगे जो होता है इस डायग्राम के लिए। पहले यहाँ देख लें ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर पूरा है। उसके बाद जो होता है एक क्वेश्चन और बनेगा कि जितने भी प्लांट होते हैं सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करेंगे तो मोस्टली जो होता है ईच ओव्यूल्स कंटेन वन embryonic sac या embryo sac or you can say the female gametophyte। कहने का मतलब ये है कि एक ओव्यूल्स में जो होता है मोस्टली जो होता है एक एम्ब्रियो सैक या एक फीमेल गैमेटोफाइट होता है। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। अब देखें क्वेश्चन हमारा ये है कि कैसे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन जो होता है न्यूक्लियस में होता है। अब देखें इसके लिए हम समझेंगे जो होता है प्रोसेस, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट भी कर लेंगे जो आगे मैं बताने चाह रहा हूं कैसे जो होता है इसका फॉर्मेशन हुआ। देखें इसके लिए हमें पढ़ना होगा जो होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। द नेक्स्ट टॉपिक इज द मेगा स्पोरोजेनेसिस। यहां आप लिख लेंगे ये स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, हमने पूरा जो होता है ओव्यूल का स्ट्रक्चर, और ये टिपिकल स्ट्रक्चर है एनाट्रोपस ओव्यूल का। तो अगर आप ओव्यूल के बारे में डिटेल कर रहे हैं तो कल हम जो होता है टाइप ऑफ ओव्यूल्स लेके आएंगे, 6 टाइप ऑफ ओव्यूल्स, एनाट्रोपस, एम्फिट्रोपस, सचिनोट्रोपस, ऑल द ओव्यूल्स टुमारो विल डिस्कस। एक टिपिकल जो होता है एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया। अब देखते हैं कैसे इस एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके लिए हम एक हेडिंग बनाएंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रो को हमने देख लिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मैं यहां लिख दे रहा हूं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए भैया अभी हमने मेल जो होता है गैमेटोफाइट्स या जो होता है मेल पार्ट में देखे थे हम लोग क्या, किसको, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, यहाँ जो होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या आपके एनसीईआरटी होगा मेगा स्पोरोजेनेसिस। कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि माइक्रो कैसे लिखते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस आपके एनसीईआरटी में मेगा स्पोरोजेनेसिस मेंशन होगा, उसको देख मेगा स्पोरोजेनेसिस। अपने आप को म्यूट कर ले भाई, मुझे आप सुनिए, मेरा दिमाग कर रहा है लेकिन ध्यान से सुनिए। हमने इसके पहले डिस्कस किया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, हर एक दूसरे से मैं लिंक कर रहा हूं। आवाज आप लोगों की आ रही, कौन है भाई, थोड़ा सा म्यूट कर ले, समझने की कोशिश करें भाई। देखिए
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने पहले ही आपको कहा कि रटाऊंगा नहीं सिखाऊंगा। देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने आपको जो डिफाइन किया था, हमने कहा था कुछ कीवर्ड यूज कर लीजिए। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर मींस स्पोर, माइक्रोस्पोर्स, उसके बाद जेनेसिस मींस सिंथेसिस। कहा था हमने डिफाइन किया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम PMC, pollen grain mother cells through meiotic divisions. That is known as microsporogenesis. Yeah, in simple way you can say the process in which formation of microspores from microspore mother cell through meiosis is called microsporogenesis. तो सेम में बेटा यहाँ पे भी देखें, यहाँ लिखा गया मेगास्पोरोजेनेसिस, इसका मतलब वहां माइक्रो था तो माइक्रोस्पोर्स बना, दैट इज द पॉलन ग्रेन्स। और यहाँ पे जो था मेगा है तो मेगा बनेगा क्या आपका ये ओव्यूल्स, ओव्यूल्स बनेगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि वहां जो होता है माइक्रोस्पोर बना था किससे, पीएमसी सेल से। यहाँ देखिए हमने लिखा था पीएमसी, पीएमसी मींस पॉलन मदर सेल्स। इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ जो माइक्रोस्पोर हुआ वो पीएमसी सेल से हुआ, लेकिन यहाँ मेगास्पोर बनेगा वो बनेगा एमएमसी। एमएमसी मींस मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। तो कैसे आप डिफाइन करेंगे, अगर हमें की पॉइंट मिल गया तो आसानी से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। हाउ डिफाइन द मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर from megaspore mother cell is known as megasporogenesis। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखें ध्यान से सुने, अगर आप देखेंगे, अब आइए यहाँ हम यहाँ देखते हैं ये जो होता सेल्स है, इधर देखिए बेटा ध्यान से, यहाँ मैं लिखा हूं MMC मीन्स मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। ये सेल्स पूरा रिप्रेजेंट कर रही है किसको, मेगास्पोर मदर सेल्स को। और ये आपका न्यूक्लियस पार्ट है, ये न्यूक्लियस मैंने यहाँ लिखा है न्यूक्लियस, दिस इज द सेल्स न्यूक्लियस, है ना। अब देखिए अगर ये जो होता है मेगास्पोर मदर सेल्स है, तो पहले मेगास्पोर मदर सेल्स का होगा क्या, मियोटिक डिवीजन। और पहले मियोटिक डिवीजन होगा, ये बनाएगी टू सेल्स, और टू सेल्स फिर जो होता है ये सेल से डिवाइड कराएगी, दो ये बनाएगी, ये डिवाइड करेगी, दो बनेगी। उसका मतलब जो होता है यहाँ पे कितना सेल्स बन गई, 4 सेल बन गई। तो कहने का मतलब ये है दिस स्टेज इज नोन एज मेगास्पोर डायट, दैट मींस 2 एंड दिस इज द मेगास्पोर टेट्राइड, टेट्राइड मींस 4। इट मींस फॉर्मेशन ऑफ द 4 मेगास्पोर टेक प्लेस। देन व्हाट हैपेंड, out of these 4 megaspores 3 degenerate and 1 become the functionals। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 मेगास्पोर्स बेटा बने, इस मेगास्पोर टेट्राइड्स में 3 जो होता है डिजेनरेट कर जाएंगे और एक होगा फंक्शनल। डिजेनरेट का मतलब बिल्कुल फंक्शनलेस, और एक होगा फंक्शनल। इसका मतलब जो फंक्शनल होगा आगे भी होता फिर वही डिवाइड करेगा और वही बनाएगा एम्ब्रियो साइट को। कॉन्सेप्ट को समझे यहाँ लास्ट तक। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि व्हेन ड्यूरिंग द meiotic division formation of the 4 megaspore take place and out of these 4 megaspores 3 degenerate and 1 become the functional and functional megaspores again divide vertically। यहाँ देखें हमने एक इसको ले लिया जो होता है, हमने यहाँ पे जो होता है सेल्स को लिया, मान लीजिए यहाँ से 3 ये 1 2 3 4 मेगास्पोर टेट्राइड्स, मैंने यहाँ नाम दिया मेगास्पोर टेट्राइड्स। Why is it the megaspore tetrad? Because 4 megaspores are formed, that's why it is the megaspore tetrad, and this is the megaspore diet, means only 2 megaspores। अब देखें हमने आपको बताया कि these 3 megaspores degenerates, 3 मेगास्पोर्स जो होता है डिजेनरेट कर जाएंगे, एक फंक्शनल होगा। अगर आप सपोज कर लिए ये फंक्शनल मेगास्पोर्स है, इसी को हम ले रहे हैं, और यही फंक्शनल मेगास्पोर्स अगेन मेटोटिकली डिवाइड एंड फॉर्म 2 सेल। यहाँ पे देखें इसको मैंने लिया और ये डिवाइड किया, फिर जो होता बनाया 2 सेल्स, फिर ये 2 सेल्स डिवाइड करेंगी बनाएंगी 4 सेल्स, अगेन दिस विल डिवाइड 8 सेल्स।
इसका कहने का मतलब ये हुआ ये सब बने क्या, दिस इज द एम्ब्रियो सेक, दिस इज द एम्ब्रियो सेक। अब हम आपको बताए थे ओव्यूल्स में ये एम्ब्रियो सेक बना। एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन कहां से हुआ, मेरा क्वेश्चन ये था एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन कहां से हुआ, मेगा स्पोर से हुआ, मेगा स्पोर से हुआ। कितने मेगा स्पोर्स बने थे, क्वेश्चन की भरमार है यहाँ, जान लीजिए कितने मेगा स्पोर्स बने, 4 मेगा स्पोर्स बने। कितने डीजनरेट हुए, 3 जनरेट हुए। कितना फंक्शनल हुए, 1 फंक्शनल हुआ। और जो फंक्शनल हुआ जो होता है वो किसका फॉर्मेशन किया, वो बनाया जो होता है एम्ब्रियो सेक। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। आगे देखें, अब ये डिवाइड किया 2 4 8, यहाँ मैं लिखा हूं फिगर में, देखिए नीचे, शायद आपको नहीं दिख रहा है, मैं लिखा हूं फिगर में नीचे जो होता 2 4 8 न्यूक्लियर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सेक। आपके एनसीईआरटी में लिखा है, देखेंगे 2 4 8 न्यूक्लियर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सेक। हमें क्यों लिखा है, बिकॉज दिस इज द 2 न्यूक्लियर स्टेज, दिस इज द 4, दिस इज द 8। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो होता है एम्ब्रियो सेक। अब देखिए बेटा, बहुत जो होता है इंपॉर्टेंट चीज यहाँ है जो आगे मैं बताने चल रहा हूँ। पढ़ेंगे आप, लेकिन कंसेप्ट हो सकता है क्लियर ना कर पाए, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो हर बातें मैं क्लियर कर दूंगा आपको। कोशिश करूंगा कि एक एक जो होता है लाइन एनसीईआरटी के मैं क्लियर कर रहा हूँ और हर चीज आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुने केवल। आप देखिए, कहेंगे सर दिस इज द 4 सेल, दिस वन आल्सो 4 सेल, इट मींस टोटल 8 सेल, टोटल 8 सेल्स। अब 8 इन टोटल 8 सेल्स का होगा क्या, इन टोटल 8 सेल्स जो होता है कैसे जो होता है मैच्योर एम्ब्रियो सेक बना। और मैच्योर एम्ब्रियो सेक कैसे बना, इसमें तो जो होता है 8 सेल्स हैं, कौन सी सेल्स जो होता है मैच्योर एम्ब्रियो सेक को बनाती है, ध्यान से आप सुनेंगे। देखें एनसीईआरटी की लाइन है, आउट ऑफ दीज 8 न्यूक्लियस, out of this 8 nucleate stage, 6 nucleus formed are enclosed by cell wall and 2 nucleus become polar. That means they 2 nucleus act as a polar और 6 जो होता न्यूक्लियस वो सराउंड हो जाएंगे किसके द्वारा, जो होता है सेल वॉल के द्वारा, और बनाएंगे जो होता है एक सेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, इसको देखेंगे। 8 न्यूक्लियस बना, अब ये 8 न्यूक्लियस में जो होता है 6 न्यूक्लियस जो होता है वो क्या करेंगे, सेल वॉल से इनक्लोज्ड हो जाएंगे और एक जो होता है ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइज्ड सेल्स बनाएंगे, और जो 2 न्यूक्लियस बचेंगे वो कहे जाएंगे पोलर न्यूक्लियाई। इसका मतलब आए हम इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में देखें, डायग्राम में ये बता रहा था इसमें 8 न्यूक्लियस थे, 8 न्यूक्लियस थे। इधर देखें, बस इसको मैं फिनिश कर रहा हूं। 8 न्यूक्लियस थे। अब इस 8 न्यूक्लियस में हमने बताया 6 जो होता बनाएंगे क्या, 6 जो होता है सेल वॉल से जो होता है सराउंड हो जाएंगे, और सराउंड होने के बाद एक ऑर्गेनाइज्ड सेल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। इधर देखिए बेटा, हमने बताया आपको 1 2 3 4 5, सॉरी इसको नहीं काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ध्यान से देखें 1 2 3। अगर आपको नीचे दिख रहा होगा, मैंने यहाँ लिखा हो एंटीपोडल सेल्स, डाउनवर्ड जो सेल्स हैं 3 सेल्स, ये देखें ये मैं बनाया बेटा यहाँ, ये एंटीपोडल सेल्स, ये 3 जो होता है न्यूक्लियस इसके एंटीपोडल सेल्स बना दिए, और ऊपर जो 2 सिनर्जिक सेल्स बना दिए 1 2 ये दोनों सिनर्जिक सेल्स हैं, और बीच की जो होता है एक सेल्स है। ध्यान से सुने, ये 3 एंटीपोडल सेल्स और इधर 1 2 सिनर्जिक सेल्स, और ये बीच में जो होता है एक सेल्स है। तो टोटल जरा काउंट करें 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 जो होता है इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। हमने बताया कि एक ऑर्गेनाइज्ड सेल स्ट्रक्चर्स। अब देखें ये जो होता है ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड सेल स्ट्रक्चर्स बन गया। कौन बनाया, ये जो होता है 6 जो होता है न्यूक्लियाई मिलकर बनाए। उसके बाद जो होता है 2 न्यूक्लियर जो होता है वो हमारे सेंटर में हो जाएगा, और ये एक्ट एज ए पोलर न्यूक्लियाई। देखिए ये दोनों क्या है, पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में, देखिए ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई है। इसका कहने का मतलब ये है
कि 6 सेल जो होता है एक ऑर्गेनाइज सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया और 2 पोलर न्यूक्लियाई जो थी वो बिल्कुल जो होता है सेंटर में अरेंज हो गई। ये जो होता है एक एम्ब्रियो साइट का फॉर्मेशन हुआ। अब देखें आगे जो होता है व्हाट इज द रोल ऑफ दिस सिनर्जिड सेल्स, एंटीपोलर सेल्स एंड पोलर न्यूक्लियाई एग सेल्स, कैसे जो होता है मैच्योर एम्ब्रियो साइट का फॉर्मेशन करती हैं। आए इस डायग्राम में देखो बेटा, दिस इज द हमने डाउन साइड लिखा है फिगर में मैच्योर एम्ब्रियो साइट, मैच्योर एम्ब्रियो साइट। डायग्राम शायद कट रहा है, एक मिनट मैं कोशिश कर रहा हूं आपको दिखाने की, कहीं इंटरनेट कनेक्शन न छूट जाए। चलिए अब दिख रहा होगा, ध्यान से देखें, दिख रहा, देखें दिस इज द मैच्योर एम्ब्रियो साइट। हमने ये मैच्योर एम्ब्रियो साइट का स्ट्रक्चर बनाया। दीज अपर सेल्स इज द एंटीपोडल cells 1 2 3, these are the antipodal cells, and this downwards you see this one, this is the 2 synergic cells, 1 egg cells, 1 egg cells। और यहां देखें ये बेस पे जो होता है एम्ब्रियो साइट के ऐसे बिल्कुल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं दैट रिप्रेजेंट टू द फिलीफॉर्म apparatus। ये बनाएंगे क्या, फिलीफॉर्म apparatus। यहां देखें दिस इज द फिलीफॉर्म apparatus, above the filiform apparatus this is the egg cells। ये क्या है, egg cells है। बीच में देखें these are the polar nuclei and this whole structures represent to the mature embryo site। ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है रिप्रेजेंट करता है क्या, मैच्योर एम्ब्रियो साइट। ये पूरा डिटेल जो होता है एक्सप्लेनेशन रहा किसका, मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल्स का। उसके बाद जो होता है हाउ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो साइट और फीमेल गैमेटोफाइट टेक प्लेस। दिस इज द मैच्योर एम्ब्रियो साइट एंड मैच्योर एम्ब्रियो साइट इज आल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। इसका कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे एक सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब आगे जब नेक्स्ट हेडिंग पे चलेंगे तो पॉलिनेशन आपकी हेडिंग है, लेकिन आप कह रहे हैं तो हम अभी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल डील करेंगे, उसके बाद जो होता है पॉलिनेशन पे चलेंगे। अब पॉलिनेशन होगा, थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्ट कर लें इस टॉपिक को। जो होता है पॉलिनेशन प्रोसेस होगा तो वहां से जो होता है पॉलन ग्रेन आएगा, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा और पॉलन ग्रेन इसी जो होता है माइक्रोपॉलन ग्रेन से आके एक पॉलन जो होता है ग्रेन फ्यूज करेगा जो होता है इस एक सेल से, और दूसरा जो होता है फ्यूज करेगा जो होता है पोलर न्यूक्लियाई से। हमने आपको बताया था कि अगर एक जो होता है एक सेल से फ्यूज किया, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज किया, इसका मतलब दो जो होता बार जो फ्यूजन हुआ दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, दो बार जो होता फर्टिलाइजेशन हुआ, दो सेल्स जो होता फ्यूज हुए एक दूसरे से, दैट्स व्हाट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। और फ्यूजन कितनी बार होगा, एक दो तीन बार होगा, तीन सेल्स इन्वॉल्व हो रही, दैट्स व्हाट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। देन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दिस डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो हम आशा करते हैं इतनी बातें आपको जो मैं बताने की कोशिश किया पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। एनसीईआरटी का हर लाइन हर पॉइंट मैंने कवर करने की कोशिश किया हूं, एक बार आप चेक कर लेंगे। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जो होता है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। तो थोड़ा सा हम आपको और बता देते हैं कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाएंगे नेट में, जरा ध्यान दें। पहली बात तो सीधा जो होता है वन क्वेश्चन फ्रॉम द ओव्यूल्स, ढेर सारे ओव्यूल्स के स्ट्रक्चर देंगे, बस पूछा जाएगा जो होता है इनकी पोजीशंस ओरिएंटेशंस के आधार पर जो होता है बताया जाएगा कौन सा ओव्यूल्स है। दिस इज द इनरट्रोपस ओव्यूल्स। आपको पता रहेगा इनरट्रोपस ओव्यूल्स से पूछेगा चैलेंजर इंड माइक्रोपाइलर एंड जो होता है एक दूसरे के जो होता है अपोजिट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन कुछ इनरट्रोपस के तो इनरट्रोपस है, एम्फीट्रोपस देखेंगे तो बिल्कुल जो होता है 90 डिग्री पे होगा। ये पोजीशन ओरिएंटेशन के आधार पर जो होता है क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओव्यूल्स में है इन विच पार्ट ऑफ ओव्यूल रिजर्व फूड मटेरियल फॉर्म्स, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये पार्ट है, इसी में रिजर्व फूड मटेरियल का फॉर्मेशन होता है। सेकंड क्वेश्चन इन विच पार्ट ऑफ ओव्यूल्स फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियोसाइट टेक प्लेस, दैट इज द न्यूक्लियस। एम्ब्रियोसाइट किसमें होता है, न्यूक्लियस में होता है। आउटर इनवेलप कवरिंग ऑफ द ओव्यूल्स इज नोन एज व्हाट, ओव्यूल्स। आउटर इनवेलप कवरिंग ऑफ ओव्यूल्स इज नोन एज, that is the integuments. Which part of ovules attached to the placenta? Which part of the ovules attached to the placenta? That is known as funicle.
that is known as funicle. The place where funicle and ovules switch to each other is known as hilum regions. Is very good, Arvi, very good. That is known as hilum regions. And hilum act as a junction between. This is also line of NCERT. Hilum is the act as a junction between this funicle and these ovules. Since I'm repeating इस line को, hilum act as a junction between funicle and ovule body of ovules. कहने का मतलब ये है कि जो hilum region होता है वो funicles और ovule के बीच जो होता है junction कवर करता है. बहुत important questions है, नीट वाले इसको नोट कर ले. Which part of the ovules act as a junction in between means funicles and body of ovules, that is known as hilums. आगे देखिए क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माइक्रोपाइलर से पूछा जाएगा. जितना डायग्राम है हर से जो होता है कम से कम 5 क्वेश्चंस आप बनाएं. मेरा आज यही होमवर्क है. टुडे दिस इज द आई एम गिविंग द होमवर्क. यू पीपल मेक एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच डायग्राम. आर गेटिंग टू मी? यस, ओके. देन everyone make the at least 5 questions from each diagram. Yeah, okay, thank you, everybody writing okay sir, okay, thank you. Then you have to make at least 5 questions from each diagram. कुछ क्वेश्चंस डायग्राम से मैंने क्वेश्चन बता दिया कैसे बने. और क्वेश्चन इससे देखा व्हील से कैसे निकलेगा. कहिए तो मैं 50 क्वेश्चन इसी बनाऊं. देखिए और क्वेश्चन कैसे बनेगा. सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा the place where, नहीं सॉरी, ऐसे बोलेंगे होता है कि in ovules okay, this is the ovules. In ovules where integuments absent. In ovules where integuments absent means integuments never surrounded that part of the ovules, that is known as micropyle. बिल्कुल सही. मतलब ओव्यूल्स का वह कौन सा पार्ट है जहां पे उसको इंटेगुमेंट सराउंड नहीं करता, दैट इज द माइक्रोपाइल. और बीएचयू 2009 या 8 का पेपर उठा के पीएमटी का देखें तो सीधा क्वेश्चन से ही पूछा गया है कि ओव्यूल्स का कौन सा पार्ट होता है जहां पे इंटेगुमेंट कवर उसको नहीं करता, दैट इज नोन एज माइक्रोपाइल. तो सो डियर टुडे this topic megasporangium ovule, megasporogenesis and pollen sac I have finished. Next lecture will continue about the structure of ovules.